रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता हैं। Tensions in West Asia have now reached the floor of Parliament. On Monday morning, the opposition staged protests inside the Parliament complex, demanding a detailed discussion on the government's response to the escalating conflict between the United States and Iran. Senior opposition leaders gathered near Makar Dwar, raising slogans and accusing the government of avoiding a debate on what they call a serious threat to India's energy security. Leader of opposition in the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, moved a formal notice seeking a short duration discussion in the upper house. Kharge said the rapidly evolving situation in West Asia has created new challenges for India's energy security. His notice was supported by Congress leaders Jairam Ramesh, Syed Nasir Hussain and Pramod Tiwari. The demand comes as tensions in the region begin to affect critical global trade routes, especially the Strait of Hormuz, a key oil shipping lane for the world. Sir, I am thankful to you. You have given me an opportunity to raise this issue. Sir, I want You be specific about your request, sir. Please don't give it. 3 minutes में खत्म करूंगा। सर, रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता हैं। एक मिनट, यस। खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन $US की रेमिटेंस होती है, जो लाखों भारतीय परिवार के जीवन का आधार है। वहाँ की घटनाओं का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की वृद्धि हुई है। इसका बोझ गरीब परिवारों पर पड़ा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। I am coming back to you. Honorable. I am telling I am coming back to you. Sir, definitely I am coming back to you. Please take your seat. Honorable Chairman, sir. Honorable. Wait. I understand. I want to give him time.
I understand his subject, please. No, 1 minute. Sir, now honorable leader of the house want to respond to this. No, you wait. Honorable leader want to respond. Honorable leader of the house want to respond to this. Sir, 1 minute. sir, जी, only 1 minute. ये बार बार Only 1 minute. आदरणीय Only 1 minute. आदरणीय Only 1 minute, please. All others, please take your seat. All others, you please take your seat. Except Garge, all of you, please take your seat. Jay, you please complete so quick. सर मेरे को पूछ रहे थे, ताजुब लगा। मैं जस्टिफाई कर रहा हूं 176 की क्या जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए है, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने Regarding this, रख रहा हूं। I already told you. I am coming back to you after due consultation on 176. Please take your seat. Now let No, the this is minister not make his necessary. statement. Sir, this is not necessary. No. When Let- 176 we let- discuss, I am everything will assuring come. you. Everything will come. Everything will come. So, No, I am it is coming back not- to you after this. Now, statement by the minister. Yes. Union Minister JP Nadda strongly criticized the protests. He said the behavior of opposition MPs during the minister's statement was irresponsible and condemnable. According to Nadda, the opposition was not interested in a serious debate but was instead trying to create chaos inside parliament. इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया SIR के बारे में। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया। 9 और 10 दिसंबर 2025 को चर्चा हुई। लगभग 18 घंटे चर्चा चली। और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन रिगार्डिंग द इंडियाज एस्ट्रोनॉट अब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस प्रोग्राम विकसित भारत 2047 पर चर्चा हो रही थी 18 अगस्त 2025 को, तो ऑपोजिशन ने इस चर्चा में भाग लेने से अपने आप को अलग रखा। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि इनका रिकॉर्ड आपको सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर, जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली, और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो यह विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। यह इनका रिकॉर्ड है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से वक्फ बिल पर जब जेपीसी की रिपोर्ट यहां रखी गई तो उस समय भी यह इन्होंने लोकसभा में वॉकआउट किया। यानी कोई भी जो भी देश के इंटरेस्ट में काम होता है उसमें इनका 2025 के बजट के बाद, डिबेट के बाद जब निर्मला जी खड़ी हुई तब भी इन्होंने वॉकआउट किया। और इस समय भी 2026-27 के बजट पर जब निर्मला जी खड़ी हुई इन्होंने सबको सुना, और जब जवाब देने की बारी आई तो ऑपोजिशन वॉकआउट करके चला गया। यह इनका कच्चा चिट्ठा है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखिए। The developments come as the second phase of the budget session resumes after a short break. But for now, the crisis in West Asia has clearly become the political flashpoint in Delhi.